السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ضرور کر رہے سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاید لکھتا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ فتوے بدل ڈالو تم، تفسیریں بدل ڈالو تم، فتوے بدل ڈالو تم، تفسیریں بدل ڈالو تم، مگر میرے احمد رضا کا تنظیمان نہ بدلا جائے گا، مگر میرے احمد رضا کا تنظیمان نہ بدلا جائے گا۔ دلی میں منسٹر کو ہر روز بدلتے ہیں، دلی میں منسٹر کو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ تم ظلم و ستم جس طرح سے اٹھا لو اے ظالم، تم ظلم و ستم جس طرح سے اٹھا لو اے ظالم، مذہب ہے میرا سچا ایمان نہ بدلا جائے گا، مذہب ہے میرا سچا ایمان نہ بدلا جائے گا۔ یادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام بلیغ جو نازل فرمایا ہے، جسے قرآن کہتے ہیں، اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمایا، اپنے پیارے محبوب پہ، جسے ہم پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں میں سب سے اتم کسی کو بنانا چاہا تو اپنے پیارے محبوب پیارے آقا مصطفیٰ کو بنا دیا، بولے سبحان اللہ۔ اور جب اس نے قرآن نازل کیا، جو کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب جسے کہتے ہیں، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ اور جب نازل فرمانا چاہا تو اللہ نے اپنے حبیب یعنی سب سے خلیفہ رسول پہ اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ آج میں آپ کو وہ تقریر سناؤں گا، ابھی تک تو معنی والی تقریر آپ سنتے چلے آئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حرف نازل اللہ نے اپنے رسول پہ کیا ہے جس پہ جو ہے جس کا معنی نہیں کیا، جس کا معنی ہی نہیں کیا۔ آج وہ چیز میں بتاؤں گا جس کا معنی ہمیں کیا بڑے بڑے مفتی، کیا صحابی اور ولی اور شہید کتب ابدال حاجیہ کی جملہ آگے بڑھتے بولتے جبریل امین کو بھی نہیں معلوم۔ اس کچھ حرف ایسے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جیسے الف لام میم۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کنز الایمان لکھا لیکن اس کا معنی نہ کیا۔ ہا میم یا سین، اس کا معنی قرآن میں نہیں ہے۔ تا سین، اس کا معنی قرآن میں نہیں ہے۔ قاف نون، اس کا معنی قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب پہ قرآن نازل کرنا چاہا تو جبریل کو فرمایا جبریل قرآن لے کے جاؤ۔ تو جب جبریل پیارے آقا کے پاس پہنچے تو کہے الف لام میم، تو توجہ، جبریل امی پیارے آقا کے پاس پہنچے، بولے الف، تو پیارے آقا نے فرمایا سمجھ گیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر جبریل امی نے کہا لام، تو پیارے آقا نے پھر فرمایا سمجھ گیا۔ پھر پیارے جبریل نے کہا میم، تو پیارے آقا نے فرمایا سمجھ گیا۔ اب جبریل آگے پڑھ رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پیارے مصطفیٰ خاموش ہو گئے۔ توجہ، یعنی الف لام میم جس کا معنی جبریل امی کو بھی نہیں معلوم، جبریل امی کو بھی نہیں معلوم، جہاں جبریل کو نہیں معلوم وہاں پیارے آقا فرما رہے سمجھ گیا۔ اور ذالک الکتابوں میں جبریل کو بھی معنی معلوم ہے، یہ وہ کتاب ہے
तहां प्यारे आका खामोश हो जाते हैं, नहीं बोलते। क्या मतलब निकला कि जो चीज जिब्रील को ना मालूम हो, कुरान का भेद प्यारे मुस्तफा को मालूम है। अब जब गैब प्यारे मुस्तफा से कुरान का ना छुपा, जब गैब प्यारे मुस्तफा का कुरान का ना छुपा, तो दुनिया का गैब कैसे छुप सकता है? दुनिया का गैब छुप ही नहीं सकता है। अब मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ के बोल दूं, गैब की बात है तो आज से 1450 साल पहले प्यारे आका ने फरमाया था कि हमारी उम्मत में कयामत उस वक्त आएगी जब वबा ज्यादा फैल जाएगा, और एक निशानी बताई थी कि बीमारी वबा फैलेगी, ऐसी वबा कि आदमी आदमी से लड़ेगी, आदमी आदमी से लगेगी। आपने नेट पे देखा होगा, लोगों डॉक्टरों से सुना होगा, जिसे कोरोना वायरस बोलते हैं, वो आदमी आदमी से लड़ती है, और यह सबसे बड़ी बीमारी होगी। निशानी बताया, शराब खूब ज्यादा पिएंगे, जिनाखोरी आम हो जाएगी, तो ऐसी ऐसी बीमारी फैल जाएगी। पहले भी आफत आती थी, पहले भी अल्लाह अजाब अपने बंदों पे भेजता था, लेकिन कभी अजाब जो है तूफान बन के आता था, कभी दरियाए मौजें लेते थी, बस्ती की बस्ती तबाह हो जाती थी, कभी हवाएं तेज चलती थी, पूरी की पूरी बस्ती खत्म हो जाती थी। आज भी अजाब हम पे आया है, जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। ये अजाब हम पे हो रहा है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते। हम जो है नमाज छोड़ के बैठे हुए हैं, जब खुद पे मुसीबत पड़ती है तो हम कहते हैं नहीं, खुल के बोलते अल्लाह याद आता है। अल्लाह को मुसीबत के वक्त याद करो, ये कमाल नहीं है। अल्लाह को खुशी के वक्त जो याद करता है वो बहुत बड़ी कमाल की बात है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको बताऊं, हजरत बनी इसराइल के जमाने में एक शख्स बहुत क्वालिफाइड था, वो इतना अमीर था, इतना अमीर था। एक दिन वो जाके कहने लगा कि यार नबी तो फरमा रहे हैं कि अगर कोई गुनाह ज्यादा करता है तो अल्लाह उसकी खुशी को छीन लेता है, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, लेकिन मैं तो बेहद गुनाह कर रहा हूँ, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। घमंड के साथ बोल रहा है, हम गुनाह कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, हमारे हाथ सलामत, पैर सलामत, जिस्म सलामत, बच्चे अच्छे हैं, घर बार सही है, मालो दौलत है, हर चीज की है हमारे पास है, किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला फौरन अपने प्यारे नबी पे जो है वही नाज़िल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन को अल्लाह भेजता, जिब्रील जाओ नबी से कह दो कि उस शख्स से बोलो कि तेरे पास सब है, तू गुनाह करता है, तेरे पास सब क्या है? तो जब प्यारे नबी बुलाते हैं, कहते हैं ये बता, बनी इसराइल के जमाने का है, जब बुलाते हैं कि बता तेरे पास क्या सब है, तो कहा हाँ कोई कमी नहीं, गुनाह बहुत करता हूँ, और यहाँ तो फरमान है कि जो है गुनाह करने वाले पे अल्लाह अज़ाब भेज देता है, तकलीफ में रहता, मुसीबत में रहता है। तो फिर जिब्रील अमीन से अल्लाह ने फरमाया जाके पूछो कि क्या उस बंदे को कभी अल्लाह की इबादत करनी तौफीक हुई है? बोलो सुभान अल्लाह। उस बंदे से पूछो, तवज्जो चाहूंगा, अपने दिल के डायरी में इस जुमले को छुपा लेना, इसे गायब मत होने देना। उस बंदे से पूछो, उस अमीर ज़ादे से पूछो, उस मालो दौलत वाले से पूछो कि क्या तुझे अल्लाह की कभी हमद तकलीफ हुई है करने को, कभी अल्लाह की इबादत करने के लिए हिम्मत हुई है? जब ये पूछा गया तो कहा नहीं, कहा इससे बड़ा तुझ पे कौन अज़ाब आ सकता है। फरमाया कि जब बंदा अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो इबादत खुदा से महरूम है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता है, अल्लाह की इबादत नहीं करता है, प्यारे आका का इश्क उसके दिल में नहीं है, तो यहाँ पहचान प्यारे आका ने बता दिया कि उससे बड़ा गरीब और उससे बड़ा पापी और उससे बड़ा अज़ाब उस पर कोई और नाज़िल नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह उसकी इबादत को छीन लेता है, उसे तौफीक नहीं देता है कि वो गुनहगार होकर के मेरी इबादत करे, उसकी मोहब्बत को अल्लाह छीन लेता है। ये उसका सबसे बड़ा अज़ाब है। इसराइल के जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में रास्ते से गुजर रहे थे, और जब रास्ते से गुजर रहे थे तो क्या देखते हैं, एक आदमी सड़क के साइड में पड़ा हुआ है, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दोनों हाथ से गायब, दोनों पैर से गायब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 की सदा जबान से लगा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं, परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगारे आलम ये मुअम्मा हमको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको तूने सही हाथ दिया है वो इबादत से जो है भागे फिर रहे हैं, जिसको सही पैर दिया है वो इबादत से भागे फिर रहे हैं, जिसके पास न हाथ है न चलने के लिए पैर है, और ये लेटा हुआ सड़क के साइड में अल्हम्दुलिल्लाह तेरी हम्द कर रहा है, तेरी तारीफ कर रहा है। बात क्या है? परवरदिगार इरशाद फरमाता है, उसी से पूछो,
उसी से पूछ। जब पूछते हैं कि बता तू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कर रहा है, तेरे को तो अल्लाह ने हाथ भी नहीं दिया है, जिसको हाथ मिला वो तो इबादत करता नहीं। तुम्हारे को पैर भी नहीं है, जिसको पैर मिला वो नमाज पढ़ते नहीं, वो इबादत अल्लाह की करते नहीं, अल्लाह को याद करते नहीं, तू क्यों कर रहा है। कहा कि मैं जो है अल्लाह को याद करता हूँ तो अल्लाह हमको सबसे बड़ा तो इनाम ही दिया कि कम से कम अल्लाह अपनी हमको तौफीक को दिया है कि मैं उसकी हमको सना कर सकूं, उसकी तारीफ तो कर सकूं। तो इससे कहते हैं हकीकत। आज हम कहाँ डूब गए हैं, आज हमारा दिमाग किधर चला गया है। आज किसी मौलवी की बात पे अमल मत करो। कुरान को जब कोई कुरान के बारे में सुनाए, कोई हदीस तुम्हें सुनाए, कोई इस्लामी चीज तुम्हें बताए तो उस पर गौर क्या करो, वरना वो वक्त दूर नहीं है जैसे और लोगों के जमाने में, नबियों के जमाने में आफतें आई थी, बलाएं आई थी, आज भी आ सकती है और जमीन पलटी जा सकती है, आप बर्बाद हो सकते हैं। कहाँ आप हैं? इतना ज्यादा बताइए, दुनिया में हर चीज वायरल हो रही है, इतनी ज्यादा आफतें आप सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई नमाज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नमाज। अच्छा, ये अगर आपसे हम ये सवाल करते कि बताइए जुमा पढ़ने का आया, तो आप जुमा कहेंगे भाई एक छोटी ईद है, तो क्या खाली ईद मना लेने से मुसलमान बंदा हो जाता है? ईद मना लेने से बंदा मुसलमान नहीं हो जाता है, ईद के साथ और भी कुछ चीजें हैं। चाहे आका ने फरमाया कि जो रोजा न करे मेरे ईदगाह के करीब ना है, जो रोजा न रखे वो मेरे ईदगाह के करीब ना है, जो ज़कात ना अदा करे फिक्र ना तो मेरे ईदगाह के करीब ना है। तो खाली रोजा भी ना रखो, खूब खाओ और नमाज भी मत पढ़ो, सही से फितरा भी अदा ना करो, सही से ज़कात भी अदा ना करो, और जब ईद का नंबर आए तो जाके सबसे आगे बैठ जाओ। तो यहाँ तो फरमाने मुस्तफा देखा जाएगा, तुम्हें नहीं देखा जाएगा। यहाँ फरमाने मुस्तफा प्यारे आका का फरमान है कि मेरे ईदगाह के करीब मत आओ, और तुम जो है सबसे आगे जाके बैठ गए तो क्या अपने आप कबूल करवा दोगे? कबूल करवाने की ताकत तुम्हें अल्लाह ने नहीं दी, अपना गिला प्यारे आका को अल्लाह ने, प्यारे आका को अल्लाह ने दिए। प्यारे आका चाहेंगे तो तुम जन्नत में जाओगे। जिसे प्यारे मुस्तफा ने कह दिया ये मेरा है, वो अलग हो नहीं सकता, और जिसे प्यारे मुस्तफा ने कह दिया ये मेरा है नहीं, वो कभी जन्नती हो नहीं सकता। प्यारे आका का फरमान है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ज्यादा ना बोल करके शॉर्टकट पे, बहुत ज्यादा बोल चुका, बहुत ज्यादा समझा चुका, ये हमारी जो है तकरीर को आम लोगों तक पहुंचाओ। हर इंसान से कहो सवाब मिलेगा, और थोड़ा बहुत सवाब नहीं मिलेगा अगर आपके, मेरे कहने से छोड़ो, अगर आपके कहने से कोई बेनमाजी नमाज पढ़ने लगा तो कहने से नमाज अगर पढ़ने लगा तो उससे डबल सवाब, और जो कहा उससे ट्रिपल सवाब मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो आप ये कोशिश करिए। खाली पब्लिक क्या समझती है कि खाली इमाम लोगों की जिम्मेदारी है, वो तकरीर में खूब समझाएं या तो घर घर जाकर के बोले, नहीं। कुल्लु मोमिन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। हर बंदा जो पैदा हुआ है एक ही माँ बाप की से नस्ल फैली हुई है। हर मोमिन आपस में भाई भाई है। हर एक अपनी जिम्मेदारी समझे। आज हम हर चीज में पीछे क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि अगर केस मुकदमा का मामला होता है तो बात खाली कचहरी और वकील पे छोड़ दी जाती है। अगर कोई पावरफुल वाली चीज होती है तो बात नेता पे छोड़ दी जाती है, और अगर घर के मामले में अगर कोई बात होती है तो बात बाप पे छोड़ दी जाती है, और अगर दीन का मामला कुछ होता है तो पूरी बात उठा के इमाम के खोपड़ी पे ला दी जाती है। यही हमारी कमी हो गई। नहीं, अल्लाह ने आपको ईमान अता किया है, अल्लाह ने आपको कलमा को बनाया है, अल्लाह अपना प्यारा बंदा तुम्हें बनाया है। प्यारे हबीब के तुम उम्मती हो, प्यारे आका से मोहब्बत करने वाले हो। हक ये बनता है मेरे प्यारे आका का फरमान सुनो, जो आज से 1450 साल पहले मक्का की सरजमीन पे प्यारे आका ने अपने भक्तों से फरमाया था, अपने दीवानों से फरमाया था, अपने जानिसारों से फरमाया था, अपने प्यारे सहाबियों से फरमाया था, किसी मेरा ही जिम्मेदारी मत समझना। अगर हर कोई मेरा भगत ये चाह लेगा कि इस्लाम को फैलाना हर किसी की जिम्मेदारी है, तो फौज दर फौज लोग मुसलमान होकर इस्लाम कबूल करेंगे। ऐसी ये बू फैली, ऐसी खुशबू मक्के से फैली, आज भारत ही नहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हर जगह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को भी नजर आए। तो हर गांव के लोगों को ये होना चाहिए, उनके दिल में बात पड़नी चाहिए कि हम भी इस्लाम के प्रचारक हैं, हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसा नहीं जिम्मेदारी निभाना कि खुदे नमाज न पढ़ो दूसरे को जिम्मेदारी निभाते रहो।
ऐसी जिम्मेदारी मत निभाना कि तो छुटका लग जाएगा उसमें। जैसे खुद नमाज नहीं पढ़ते तो वैसे बड़ा नमाज पढ़ने जाकर तो पलट के तुम्हें भूल देगा। यार आका का फरमान है कि पहले खुद को सुधारो। कोई अमल तुम्हारे अंदर अगर नहीं तो पहले खुद को उसे करने की कोशिश करो, और जब वो अमल तुम्हारे अंदर पाया जाएगा और जब फिर किसी से कहोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, या तो कबूल कर लेगा या तो उसका गुनाह लेकर वहां से चला जाएगा। अगर कबूल कर लिया तो जन्नत का रास्ता उसके लिए है, अगर उसने ठुकरा दिया तो समझो जहन्नम के दरवाजे को उसने चुन लिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हर किसी की जिम्मेदारी है नमाज की पाबंदी करो। और सबसे पहले अपने घर में माए हैं, बहनें हैं, लड़की हैं, अगर बड़ी है नमाज पढ़ने के लायक है, उन्हें आपकी जिम्मेदारी बल्कि आपसे मैदान महशर में पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि बताओ मैंने तुम्हें एक घर का जो है हाकिम बनाया था, तुम किसी के बाप थे, तुम किसी के भाई थे, तुम किसी के चाचा थे, तुम किसी के फूफा थे, आखिर बताओ तुम किस बुनियाद पे अपने आप को इतना बड़ा हाकिम करते थे? क्या तुमने कभी अपने बेटे को नमाज के लिए कहा? क्या तुमने अपनी बीवी को कभी नमाज के लिए कहा? क्या कभी तुमने अपनी माँ को नमाज के लिए कहा? क्या तुमने कभी अपने जो है बच्ची को नमाज पढ़ने के लिए कहा? ये तुमसे पूछा जाएगा, ये मैं नहीं कहता। प्यारे आका फरमाते हैं कि अगर घर का कोई मर्द हाकिम है तो उससे मैदान महशर में ये भी सवाल किया जाएगा कि तूने अपने बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हदीस मुस्तफा की रोशनी में जो मैं बोल रहा हूँ उस पे अमल करने की कोशिश करिए। बाहर तो बाद में कहना, घर का हर जिम्मेदार अगर इस पे अमल कर लिया तो ये मस्जिद खाली नहीं रह सकती। हर मस्जिद में नमाजी नजर आएंगे। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर घर का अगर कोई सिपह सालार, कोई हाकिम है, जिम्मेदार है, तो सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी उठा लो। कोई नमाजी बेनमाजी नहीं रहेगा, सब नमाजी हो जाएंगे। बच्चा भी नमाज पढ़ेगा, बेटा भी नमाज पढ़ेगा, भाई भी नमाज पढ़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपसे हमारी आखिरी गुजारिश है, बहुत सारी तस्वीरें आप सुने होंगे, बहुत सारी हमारी तस्वीरें आप सुनते भी रहते हैं। आप अपने कान के पर्दे को खोलिए और हमारे जुमले को अंदर जाने दीजिए और अपने दिल की डायरी में मोहब्बत के साथ याद कर लीजिए कि यारो आपकी असल इबादत नमाज है। आज जो हमारे पे आफत आ रही है, बला आ रही है, आपने अल्लाह को भुला दिया है। सिर्फ जबान तक आपके गले से अल्लाह नहीं उतर रहा है, आपके दिल में मुस्तफा नहीं है। अगर डारे मुस्तफा होते, अगर डारे आका से इश्क होती तो इतनी बड़ी आफत आती है, इतनी बला आ जाती है, इतनी परेशानी आ जाती है। उसके बावजूद कुरान खोल के ऐलान कर रहा है कि अगर किसी मुसलमान के दिल पे कोई इस्लाम की चीज नहीं असर होती, अगर कुरान की आयत नहीं असर होती, अगर हदीस नहीं असर होती, तो वो बंदा अपने को मुसलमान न समझे, बल्कि यह समझ ले कि हमारा दिल गुनाह से काला हो गया है, इसलिए हम पे बात असर नहीं हो रही है। अगर उसके कान में सही बात नहीं जाती है, अगर उसे वो कबूल नहीं करता है, तो वो अपने खुद पे रोले, दूसरे पे क्या रोएगा? वो समझ ले कि मैं इतना बड़ा गुनहगार हो गया हूँ कि अल्लाह ने अब मुझसे अपनी इबादत को छीन लिया है और मुझे सबसे बड़ा गरीब दुनिया का इंसान बना दिया है। सबसे बड़ा अज़ाब मुझ पर यह नाज़िल कर दिया है कि अपनी इबादत को मुझसे छीन लिया, मुझे करने की तौफीक नहीं दी है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए, नमाज की पाबंदी करिए, हर घर में कोशिश करिए। अगर आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, 5 वक्त की अज़ान 5 बार उसे कहो। और हदीस की रोशनी में बच्चा को हक बनता है जब 7 साल का हो जाए उसे बार बार कहो, प्यार से कहो, मोहब्बत से कहो। जैसे और कॉलेज जाने के लिए बच्चा मुन्ना करके आप फुसलाते हैं, उसे बयान बताते हैं और प्यार करके गाड़ी में बैठा के स्कूल भेज देते हैं, इसी तरीके से 7 साल का बच्चा रहे। आप प्यार करिए, पैसा दीजिए, गोद में उठाइए, हो सके तो गोद में उठा के मस्जिद में उसको प्यार से ले आइए। इससे बड़ा तुम्हें सेवा कहीं नहीं मिल सकता है। और वही बच्चा अगर बालिग हो जाए, 10 साल का हो जाए, 12 साल का हो जाए, तो नमाज के बाद किसी और चीज के बारे में मारने का हुक्म इतनी जल्दी नहीं आया है। लेकिन प्यारे आका फरमाते हैं कि वही बच्चा आपका अगर बालिग हो जाए, हद बुलूग तक पहुंच जाए, तो मार मार कर उसे नमाज पढ़ाया जाए। आपने कभी इसका हक अदा किया? कभी प्यारे आका की हदीस पे अमल किया? अगर हर बाप अपने बेटे के लिए जिम्मेदारी निभा देता
तो आज आप पे नमाजी नहीं होते, आप भी किसी के बेटे होंगे, आपको भी बेटे हैं। हर बाप अपने बेटे के लिए जिम्मेदारी नमाज निभा दे तो कोई नमाजी जो है बेनमाजी नहीं होगा, हर कोई नमाजी हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस तकरीर को कबूल फरमाए और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।